اسرائیل اور USA اور ایران جو کہ جنگ ہے اس کا 8واں دن اور 8ویں دن کا جو احوال اس کا اگر بیان کیا جائے تو اس وقت جو سچویشن ہے مڈل ایسٹ میں یا ان علاقوں میں، تو بعض جگہوں پہ تو زیادہ جو ہے وہ شدت اختیار کیے ہوئے ہے جنگ، اور بعض جگہ پہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا اسٹریٹجی میں جو ہے وہ فرق آیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایران نے اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا چینج کیا ہے. اس کو فین ریٹریٹ بھی کہتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ لے جانا، کہ دوسرا یہ سمجھے کہ بھائی میرے پاس کوئی ہتھیار کم ہو چکے ہیں یا ایمونیشن کم ہو چکا ہے میرے پاس. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ایران اپنا رہا ہے، کیونکہ ایران تو اس جنگ کے لیے بڑے عرصے سے تیاری کر رہا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس کی تیاری اتنی ہو کہ سال پہ یا 6 مہینے پہ ہوئی. تو اس نے تو بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، سالوں جو ہے وہ اس کی جنگیں چلی ہیں. آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق کے ساتھ وہ 10 سال تک جو وہ لڑتا رہا ہے. اور جو پراکسیز وار ہیں جو لگاتار جو حزب اللہ، اس کے بعد حوثی اور یہ جو علاقے ہیں سیریا میں، عراق میں، تو یہ جو اس کی جو پراکسیز ہیں، جو اس کے جو ماننے والے یا اس کے جو الائنس ہیں، جو گروپ ہیں، ملیٹنٹ گروپ جس کو اس نے بنایا ہوا ہے، جن کو یہ اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے، ہتھیار دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ہر چیز. تو وہ اگر اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں اور اتنے جو ہے وہ پاورفل طریقے کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں جنگوں کو، حزب اللہ کی آپ مثال دیکھ لیں، حوثیز کی دیکھ لیں کہ حوثیز کا ابھی تک تو مقابلہ نہیں ہو سکا ہے. ابھی تک تو حوثیز کو اس جو جنگ میں کوئی شکست نہیں دے سکا ہے. ریڈ سی سے ایک چیز جو ہے وہاں سے جو ہے وہ ایک پتہ جو ہے وہ نہیں ہل سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. اور اس کے بعد اگر دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کوئی طاقت اس ٹائم دی ہوئی ہے تو وہ حوثیز کو دی ہوئی ہے کہ ریڈ سی پہ کم از کم ان کی حکومت ہے. وہ جو وہاں سے جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے، ایک مخصوص ایریا ہے جو اس یمن کے ساتھ لگتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ حزب اللہ کس قدر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور کتنے عرصے سے ڈٹا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بتاتے خود جب جنگ میں آئے تو اس کے پاس اسلحے کی کمی ہو جائے. جس طرح امریکہ جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس کے پاس میزائلوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی کم ہو چکی ہے، ڈرونس کی اتنی کم ہو چکی ہے. تو یہ سب اس نے خود سے کیا ہے. وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہے، تھوڑا سا سانس لے رہا ہے، اسٹریٹجی اس نے تبدیل کی ہے. دیکھیں ایران سکڑ کے جو ہے وہ خراسان تک تو جا سکتا ہے. خراسان ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ یہاں سے کالے جھنڈے، سیاہ جھنڈے ابھریں گے، اٹھیں گے. ایک دستہ اٹھے گا جو امام مہدی علیہ السلام کی فورس کے لیے جو ہے وہ جائے گا، ان کی بیعت کے لیے جائے گا، ان کی سپورٹ کے لیے جائے گا. تو وہاں تک تو یہ بات تو ہے کہ ایران اس کے اگر آپ بارڈر دیکھ لیں، کرد ہیں، اس کے بعد لور ہیں، اس کے بعد آذری ہیں، اس کے بعد ترکمانی ہیں، اس کے بعد یہ بلوچستان کے ساتھ جو علاقہ لگنے والا ہے، افغان کے ساتھ جو علاقہ لگنے والا ہے، جو خراسان جسے آپ کہہ سکتے ہو. تو اس طرح کے اس میں سیکٹ ہیں، کشین بھی ہیں، فارسی جو لوگ ہیں. تو وہ اس جنگ کو اگر طوالت اختیار کر گئی، اگر طول پکڑ گئی، تو یہ اس طرح کے علاقوں میں تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے ہیں. ایران اس کا جو ٹوٹ سکتا ہے، ٹکڑوں میں جو بڑھ سکتا ہے. اسرائیل اس کو جو ہے USA مل کے اس کو جو اس طرح کی پوزیشن میں لا کے وہ مڈل ایسٹ پہ قبضہ کر سکتے ہیں. جو ان کا گریٹر اسرائیل بنانے کا پلان ہے اس پہ وہ کاربند رہ سکتے ہیں، اس پہ وہ اپنے مقصد میں پورا ہو سکتے ہیں. اور یہ ہو کر رہے گا اگر جو پیشن گوئیوں کے حساب سے آپ دیکھیں حدیث کی روشنی میں. لیکن شکست فاش دینا ایران کو یہ ناممکن ہے. تو اس حوالے سے جو ٹرمپ نے جو نیا جو اس نے بیان جاری کیا ہے کہ بھائی غیر مشروط طور پہ ایران اگر جنگ بندی پہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے تو ہم تیار ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی یہ ان کی فرسٹریشن ہے، یا پھر آپ ان کا غرور و تکبر کر سکتے ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ پہلی بات ہے تو ایک تو 80 سال کا وہ آدمی ہے، اس کا میرے آپ ویڈیو آپ دیکھ لیں، پرانی پہلی جو ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں، ٹک ٹاک پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، دیکھ لیا. میں نے کہا ہے کہ وہ ایک مسئلہ ٹائپ جو ہے وہ انسان ہے جو حکومت کر رہا ہے، اور وہ کٹ پتلی ہے. وہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ CIA کے ہاتھوں میں بھی کٹ پتلی ہے، CIA کسی اور کے ہاتھوں میں کٹ پتلی ہے، کسی اور کی چین کسی اور کے ہاتھ میں ہے. کیا یہ دجالی سسٹم ہے وہ اس چیز کو رن کر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے میری جو وائب جو کہتی ہے، میری چھٹی اس کہتی ہے کہ وہ ساری جو چیزیں تارے وہیں سے ہل رہی ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ کٹ پتلیاں ناچ رہے ہیں، اسرائیل سمیت ناچ رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی بیان بازی کرنا دینا، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس سے پہلے تو اس نے کوئی ایک بات تو کی نہیں ہے، اس کی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، ہر وقت یو ٹرن لیتا رہتا ہے. آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے، پالیسی اس کی کوئی ہے نہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، یادداشت اس کی کمزور ہے. آج کچھ کہے گا، کل وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ ظاہر عمر کا تقاضا ہے. اس دنیا میں دیکھیں آپ، اس دنیا کی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے جو حکمران ہیں، وہ جوان جو ہے وہ سارے فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر، ایکس، اور ادھر جو ہے وہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اپنے عالم مگن. اور ان کے حکمران جو ہے وہ 80 سال کے بوڑھے کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کا دماغ جو ہے وہ ٹخنوں سے بھی نیچے چلا گیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ 70-80 سال کا بوڑھا آپ اپنے علاقے میں، آپ سپوز آپ اپنے گاؤں میں، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کہ کسی 70-80 سال کے بوڑھے کی کوئی مانتا ہے یا اس کی بھی کسی بات کو کوئی سیریس لیتا ہے؟ نہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، نہ وہ بولنے کے صحیح قابل ہوتا ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ اس کی کچھ سنتا ہے، نہ وہ کہیں بیٹھ کے کچھ کسی کو وصیت کر سکتا ہے. بس صرف اس کا یہی کام رہتا ہے کہ بھائی ایک جگہ بیٹھا رہے، کھاتا رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا وقت آئے گا تو نکل جائے گا. یہ روٹین میں آپ کو بتا رہا ہوں. 80 سال کا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو نہیں کچھ. وہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ دنیا کس طرح اس نظام کو جو ہے وہ جھیل رہی ہے. اور یہ نوجوان خاص کر کے میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اس دور کے یہ نوجوان سب سے بدقسمت یا سب سے زیادہ بےغیرت یا سب سے ڈل، جاہل، نالائق آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، ہم سمیت، کیونکہ ہم بھی وہی اسی سیلی کے چٹے بٹے. یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک ملک کی نہیں بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کی پوزیشن یہی ہے. آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کل کچھ کہہ رہے ہیں، پرسوں بھول جاتے ہیں. اور یہ شروع سے پاکستان تو یہ شروع سے چلا رہا ہے. میں ایک ویڈیو بناؤں گا جو ان کا ایک انہوں نے جو گورنر بنایا ہوا تھا، وہ تو یہ دستخط بھی اس سے کرواتے تھے. تو میں اس کی پوری تفصیل جو کسی یہ اس جنگ کے ماحول میں تو میں وہ نہیں دے سکتا ہے نا جب تک یہ ہے. تو وہ اس پہ ویڈیو انشاءاللہ بنا کے میں چھوڑوں گا. تو وہ جو اس کا جو نیا بیان آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ
जो इराक में जो एक इनका जो मिलिटेंट ग्रुप है ईरान का, उसने जो है वो एक एरिया है जहाँ पे हिट किया है, ड्रोन मारे हैं या मिसाइल मारे हैं या क्या किया है, उसमें एमुनेशन था काफ़ी जो है वो अमेरिकन आर्मी का, उसको तबाह किया है। तो उसके बाद ये है कि ये इराक में कहीं किसी जगह पे किसी बेस पे जो है वो इराबिल मेरे ख्याल में नाम है उस जगह का, मैं सही एग्जैक्ट उसका नाम जो है वो मेरे ज़हन से निकल गया, इराबिल ही कहते हैं मेरे ख्याल में, वहाँ पे उसने जो है वो काफ़ी नुकसान पहुँचाया अमेरिकन को। और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है अमेरिका को, जिसके बारे में कोई बता नहीं रहा है आप सब लोगों को, हमको, कोई भी, वो है जो अटैक हुआ है प्रिंस सुल्तान जो एयर बेस है जो सऊदीया में, बहुत बड़ा डेंजरस किस्म का वहाँ पे मिसाइल हमला किया है ईरान ने, और उसमें अमेरिकन की बहुत जो है वो नुकसान भी हुआ है, मौतें भी वाक़ा हुई हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है। उसके बाद जो है वो अगर आप देखें ईरान में तो मुख्तलिफ खबरें हैं, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट अपनी अपनी बातें बताते हैं। मैंने भी आपको पहले बताया था कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, डिस्ट्रक्शन तो हर जगह पे है, बिल्डिंगें जो है वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ज़ाहिर है इतनी हैवी बम्बार्डमेंट होती है तो बचता तो कुछ भी नहीं है, कारपेट टाइप बम्बार्डमेंट वो कर रहे हैं जो फुटेज से लगता है। लेकिन कल मैं देख रहा था कि कोई एक जो जर्नलिस्ट है उसने जो है वो यहाँ पे वहाँ से जो है वो वीडियो बना के तेहरान से जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई है कि देखें जी वहाँ पे हर चीज़ जो है वो नॉर्मल है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग वहाँ पे रश है, वहाँ पे लोगों का ग्रॉसरीज ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी रहे हैं। तेहरान की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि वो किसी एक सड़क पे गया, किसी एक मार्केट की बात कर रहा है या किसी एक मेन बाजार की बात कर रहा है, बाकी का क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर तेहरान ज़्यादा बमबारी वहीं पे हो रही है और वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल जो है वो सुनने में आया नॉर्मल, वहाँ पे लोग बिल्कुल पैनिक नहीं है, लोग खुश हैं, लोग जो है वो इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि हमारी जंग लगे, आखिरी जंग लगे, इस इसराइल को हम सुफाई अस्सी से मिटाएं, इसको जो है वो अमेरिका को शिकस्त दें, वो लोग खुश हैं। वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन है इस वक्त तेहरान में और ईरान पूरे में। और दूसरा ये है कि ईरान ने जो है वो बहुत बड़ी जो है वो इस जंग के लिए प्रिपरेशन किया। हमें लगता नहीं है इस दुनिया को, ये पाकिस्तान में हमें पता नहीं क्या बताते हैं, सारी उम्र ताला पाकिस्तान पढ़ाते रहे हैं, उसमें ताला पाकिस्तान ने हमारा सत्यानाश किया हुआ है और अभी तक जो है उसी खसार में, उसी जो है वो हिसार में आज भी जो है वो अगर आप इनकी बातें सुने तो वो कहेंगे कि जी कोई बहुत बड़ा खुफिया हाथ है, इशारा देते हैं कि पाकिस्तान का वो सपोर्ट कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान क्या सपोर्ट करेगा। लेकिन ये है कि ये हमें बता के इन्होंने जो है वो ऐसी ऐसी चीजें मुमताला पाकिस्तान में, ईरान बड़े अच्छे से इसकी सपोर्ट कर रहा है और उसकी जो है वो प्रिपरेशन है, उसका आप अंदाजा करें कि ईरान की जो बंदरगाह है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, इसके साथ तकरीबन बहुत बड़ी जो है वो कितने किलोमीटर पे फैली हुई है उसका इलाका सारा, उस समुद्र के साथ, उसने उस समुद्र के साथ कोई बंदा वहाँ पे नहीं रहता है, कोई आबादी नहीं है वहाँ पे, सब जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो फौज है या फिर वहाँ पे कहीं बंकर बनाए हुए हैं, कहीं जो है वो उन्होंने अपनी पोस्टें बनाई हुई हैं। पूरा बॉर्डर जो आप इसका देख लें, जितना भी इसका बॉर्डर है, जहाँ पे इसको खतरा है कि यहाँ से हमला हो सकता है, यहाँ से कुछ हो सकता है, या यहाँ से इस पे कभी तारीख में हमले हुए हैं, हमेशा समुद्र के रास्ते से हुए हैं, जिस रास्ते से हुए हैं उन्होंने उस सब रास्तों पे जो है वो इस तैयारी की हुई है। और इनके जो रहन सहन है और इनके जो सामान वो इतने संगलाख पहाड़ों में और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों में है कि आप सबर नहीं कर सकते हैं। तोरा बोरा को आप भूल जाए, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं वहाँ पे और ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन्होंने ये सारा कुछ छुपाया हुआ है और रखा हुआ है और उसकी तैयारी और उसके लिए फौज इन्होंने रखी हुई है। तो इस हवाले से जो है वो ईरान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है और वो इतनी जल्दी ये हार नहीं मानेगा। दूसरा इस जंग के बारे में सबसे जो मैं एक आपको अहम बात बताऊं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी वो रमज़ान के बाद ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ट्राई ये कर रहे हैं कि यहाँ मुझे जो लग रहा है ऐसा कि सऊदीया और ईरान आपस में जो है वो ये कुछ ना कुछ ज़रूर इनका आपस में टकराव होगा और फिर उसके बाद खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी और उस खाना जंगी में ये यूएई, सऊदीया, बहरीन, इराक, ईरान, ये सारे आपस में जो है वो एक दूसरे को जो है वो हिट करेंगे और कतर हो गया, ये एक दूसरे को हिट करेंगे और ये बड़ी जो है वो खतरनाक किस्म की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी अगर इस तरह का कोई मामला हो गया, क्योंकि जिस तरह की वो प्लानिंग कर रहे हैं उन्होंने बड़ी प्लानिंग की हुई है कुफार ने, योद नसारा ने, कि वो किस तरह जो ट्रैप करेंगे इस जंग का, उन्होंने भी बड़ा जो है वो इसका जो है वो प्रिपेयर करके प्लान करके तो इसका जो है वो इसकी शुरुआत की है। प्रोपेगेंडा में तो लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन अगर आप हकीकत की नज़र से देखें तो ये कोई मजाक नहीं है, ये वाकई जो है वो कोई बहुत बड़ी जंग है जो बड़े अरसे से लगी हुई है, लेकिन इसकी जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुल्क शामिल हो रहे हैं, तकरीबन 12-13 मुल्क जो इनके साथ हो गए हैं। मुल्कों के जो लोग हैं वो तकरीबन जो आम लोग हैं, नॉर्मल जो लोग हैं वो तकरीबन खिलाफ हैं। एक मैं आपको मजे की बात बताऊं, बहरीन को सबसे ज्यादा जो है वो इसने हिट किया है, मिसाइल जो वहाँ पे जाके लगे हैं ईरान के, मैंने पहले भी आपको बताया था 5th फ्लीट जो वहाँ पे है सबसे बड़ा जो है वो उन्होंने एयरबेस बनाया हुआ है, जहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट को ये कवर करता है, पूरे एशिया को ये कवर करता है, उसकी निगरानी करता है। लेकिन एक बात वजह की मैं आपको बताऊं कि वहां पे बहरीन में जो लोग हैं वो ज्यादा तादाद उनकी जो है वही है जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर को मानते थे और वो लोग यकीन जाने खुश हैं। कितनी जगह है, फुटेज आई है, वीडियोस आई हैं जो आप देख सकते हैं CNN पे, जजीरा पे और इधर उधर के, वहां पे वो लोग खुश हैं, नारे मार रहे हैं कि मिसाइल हमले हो रहे हैं, एयर बेस तबाह हो रहा है। ये बहरीन की बात कर रहा हूं मैं, ये बहरीन जिस पे हमला हो रहा है, जिस पे जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है पूरी दुनिया और लोग और मुल्क और उनके हुक्मरान, ये जो नौसरबाज हुक्मरान, चोर हुक्मरान और ये अयाश हुक्मरान, ये नैरो जो है वो रोम के नैरो जो है वो वहाँ पे बांसियां बजाते हैं कि जी हम पे ये हो गया, ईरान ने ये कर दिया। वहाँ पे लोग खुश हैं कि भाई ये अमेरिकन बेस हमारे मुल्क में कर क्या रहे थे, ये यहाँ पे ये अड्डे कर क्या रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे देखी गई हैं, ये सबूत है इनके जो है, ये आपको मैं ऐसे ये बात यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया, यहाँ पे वही बात मैं आपको बताता हूँ जो बात सबूत होती है, कंफर्म होती है, उसके अलावा मैं कोई बात यहाँ पे नहीं करता। यूएसए का जो सदर है वो यूके से बड़ा जो है वो नाराज है, यूके के स्टारमर से, जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, कि ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो विंस्टन चर्चिल होता था, जो इनकी लौंडी बना था, ये भी इसको अपनी लौंडी जो है वो समझता है, ये दुनिया को ही लौंडी समझता है। तो ये कहता है कि ये उस तरह की जो है वो हमारी चापलूसी नहीं कर रहा या हमारा हुक्म नहीं मान रहा है जिस तरह वो माना करता था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो स्टारमर है उसकी जो अपोजिशन है उसने भी उसको जो है वो कहा कि भाई तुम उस तरह की सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ की अपोजिशन भी चाहती है कि ये यूएसए का साथ दे। तो उसने फिर जो है वो इसका साथ देने का ऐलान किया और फिर कहा कि ठीक है जी, आप हमारे बेस जो है वो साइप्रस में है, जिस तरह वो उन बेसों को इस्तेमाल करो और वहाँ से होकर ईरान पे अटैक करो। ऑलरेडी उस बेस पे जो है वो साइप्रस के अटैक कर भी चुका है ईरान, जो है वो उस पर ड्रोन और मिसाइल मार चुका है। तो उसने वहाँ पे जो है वो अपना एक डिफेंस सिस्टम है वो भी भेजा है, एयरक्राफ्ट भी उसने वहाँ पे भेजा हुआ है, एक
समुद्री जहाज़ भी वहाँ पे उसकी सपोर्ट के लिए भेजा है, डिफेंस सिस्टम उसके लिए जो है वो दिया है, और भी फ़ौज उसके लिए भेजी है, जिसको साइप्रस ने कहा है कि वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं है। और जो है वो यूके का यूएसए का जो सदर है ट्रम्प जो है वो भी कहता है जी स्टारमर ने जब हम जंग जीत चुके हैं तो स्टारमर हमारी सपोर्ट को आया है, जीत अभी जंग ही नहीं लगी है तो जीते कहाँ से हो, यानी कि उसको ये कह रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये इसी तरह की भड़कें तो एक दूसरे के साथ डायलॉग बाजियां कर रहे हैं। यूएई से जो खबर आई है कि इससे पहले जो था कि उन्होंने कहा था कि जो भी शातें हुई हैं वो फॉरेन नेशनल थे, मैंने आपको बताई थी। अभी जो है वो उसका जो लेटेस्ट जो है वो उसकी जो 8वें दिन की जो खबर है उसमें ये है कि उस पे मिसाइल अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक भी हुए हैं, और शार्पनेल गिरने से वहाँ पे ये इनका कोई एक शहरी है जो वो उसकी डेथ हो चुकी है। शार्पनेल ये दस्ती बम टाइप जो वो चीज़ें होती हैं, या ड्रोन्स के ज़रिए जो की हैं या फिर मिसाइल के ज़रिए की हैं। तो उसमें जो उस हलाकत की खबर आई है एक की, उससे इंजर्ड के बारे में भी यहाँ काफ़ी जो है वो इंजर्ड भी हुए हैं। तो बहरहाल ये नया जो है अटैक हुआ है यूएई पे। उसके बाद कतर ने भी कहा है कि उसके जो एयर बेस है वहाँ पे दोबारा से जो है वो इसराइल ने लेटेस्ट जो है वो मिसाइल भी मारे हैं, ड्रोन भी मारे हैं, हमने इंटरसेप्ट भी किए हैं और कुछ लगे भी हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने हलाकतों की या इंजर्ड होने की किसी की कोई खबर उन्होंने दी नहीं है अभी तक। यूएसए ने जो लेटेस्ट जो अटैक किया है ईरान पे तेहरान में, वो तो कर ही रहा है। तो कोई ऑयल कोई इंडस्ट्री है इसकी, वहाँ पे इसने बहुत बड़ा अटैक किया है, जो वहाँ के शहरी भी बता रहे हैं। किसी का इंटरव्यू आया था किसी एक लड़की का कि वहाँ पे बड़ा जो है वो धमाका हुआ है, बड़ा फ्यूल है और बहुत धुआं है, जो वहाँ से फ्यूल जो उस टैंकर है उस पे अटैक किया गया है, और उस वजह से खासी जो है वो लोग स्ट्रेस में है वहाँ पे। लेकिन ईरान की तरफ से जो खबर आई है उन्होंने कहा है कि यूएस ने अटैक किया है हमारे वाटर प्लांट पे, जो डिसैलिनेशन प्लांट था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे था, जहाँ से होके वहाँ पे तकरीबन ईरान के 30-40 के करीब गाँव थे जहाँ पे जो पानी की जो सप्लाई होती थी वहाँ पे पहले ही जो पानी की जो बड़ी कमी है ईरान में, तो उस प्लांट को हिट किया और उससे मुतासर हुए हैं वो गाँव जो है वो 30-40 के करीब गाँव। तो ये जो चक्कर अगर शुरू हो गया है तो ये बड़ा खतरनाक चक्कर है। आपको पता है कि सऊदीया जो है इस वक्त है उसमें पानी जितना भी है वो सारा समुद्र का पानी इस्तेमाल करता है, डिसैलिनेशन प्लांट है उसके, वो वहाँ से होकर जो है वो हर शहर में जो है उसका पानी जाता है। तो मुझे लगता है कि ईद के बाद अगर इस किस्म की सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई और ईरान ने अगर या किसी और ने या कोई चाल हो गई इन दोनों को आपस में लड़ाने के लिए, और अगर उनके डिसैलिनेशन जो प्लांट है, जो वाटर के जो प्लांट है, अगर उनको हिट किया गया और वाटर की सप्लाई अगर बंद हो गई और वो प्लांट अगर डिस्ट्रॉय हो गए, तो तकरीबन 80 से 90% जो पानी की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी सऊदीया में, क्योंकि सऊदीया अपना पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इन्हीं प्लांट से। उसने और कुछ नहीं किया है इतने अरसे में, कोई उनमें कुएं का चक्कर ही नहीं है, किधर है किधर नहीं है। पहले होते थे किसी ज़माने में वो लोग अपना पानी पूरा करते थे, कोई स्टॉक होते थे, पुराने दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब से ये जो तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, तो उसने ये सारा कुछ सिस्टम खत्म करके उसका जो जितना भी है सारा वो ये डिसैलिनेशन प्लांट जो समुद्र से पानी आता है उसको वो साफ करके तो वो शहरियों को देता है। आबादी भी बढ़ गई है, लोग भी ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ अगर हो गई उनके वो प्लांट अगर जो है वाटर प्लांट अगर हीट होने शुरू हो गए, वो खत्म हो गए, तो 80 से 90% पानी जो है वो कमी हो जाएगी और ये और खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लोग उठ के जो है वो खड़े हो जाएंगे, खाना जंगी शुरू हो सकती है और बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सारी प्लानिंग जो है वो इन इसराइल और यूएसए के दिमाग में ज़रूर है, और अपनी तरफ से ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। और बैरूत में जो है वो इसराइल लगातार अटैक कर रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इसराइल का जो जितना भी टारगेट है वो लेबनान है। लेबनान में जो है वो हिजबुल्लाह है, उसको जो है खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी ट्राई कर रहा है और लगातार वहाँ पे अटैक कर रहा है। और यूएसए जो है वो तेहरान की उसने ईंट से ईंट बजाई हुई है। ये जो इनकी जो है वो इस वक्त की सिचुएशन, यूएसए के जो सर्विस मेंबर थे जो डेथ हुई थी जिनकी कुवैत में भी हुए थे और उसके बाद इसराइल में भी जो मारे गए थे, तो इनकी तादाद जो इन्होंने बताई थी वो तकरीबन 10 के करीब थी, 10 के लगभग थी। कभी 6 कभी 8 कहते थे, कभी 10 कहते थे। वो जो है वो इनकी जो स्टेट है यूएसए की डेलावेयर, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो सारी उनकी जो डेड बॉडीज़ है वहाँ पहुँच चुकी हैं और ट्रंप ने जो है वो बड़ा खुशी का इज़हार किया और सैल्यूट किया उन लोगों को जिन्होंने उन डेड बॉडीज़ को वहाँ पे पहुँचाया। और वो जो डेड बॉडीज़ की जो फैमिलीज़ थी जो पीछे, उनके साथ जो है वो उनकी ट्रंप की मुलाकात हुई है और उनके साथ उसने ताज़ियत की है अमेरिका में। इदारे के मुताबिक इस वक्त तक उसने जो है वो 4000 के करीब जो है वो स्ट्राइक किए हैं ईरान के ऊपर, और उसमें से 150 जो है वो उसका जो डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम, उसने मुकम्मल तौर पे जो है वो उसका तबाह किया हुआ है। ये जो उसकी जो रिपोर्ट है। और फिर उसने कहा है कि तकरीबन 8000 के लगभग उसने जो है वो गोला बारूद जो है वो फेंका है ईरान पे और ईरान की मुख्तलिफ जगहों पे, तेहरान में और इधर उधर। ये जो उसकी है और अभी तक जो उसने कैलकुलेशन की है। इसी तरह यूएई की तरफ से जो है वो उसने कहा है कि तकरीबन हमने 1100 के करीब जो है वो हमारे ऊपर जो मिसाइल और जो ड्रोन जो है वो हिट हुए हैं इतने अरसे में, और उसमें से उसने ज़्यादातर जो है वो इंटरसेप्ट किए हैं। कोई चंद एक जो है वो जो गिरे हैं बेसिस पे और वहाँ पे हलाकतें हुई हैं। 3 फॉरेनर जो हैं, आज जो उनकी एक नई हलाकत हुई है, जो कि उनका शहरी था यूएई का। तो उसमें जो है वो उसने कहा है कि जो यूएई का जो सदर है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है, उसने जो है वो उसका इंटरव्यू जो है वो सुना था। उसने कहा है कि हमारी जो चमड़ी है वो बहुत बड़ी मोटी है और हमारा गोश्त बहुत कड़वा है। ये उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान है। उसने कहा है कि हम अपने लोगों की हिफाजत करेंगे और आखिर दम तक करेंगे, और हम जो है वो हमारा गोश्त बहुत कड़वा है। हमें कोई अगर कोई आसान हदफ समझ कर हमें खाने की कोशिश करेगा तो उसका जो है वो हाल अच्छा नहीं होगा। और ये जो उसका ताज़ा बयान आया है, पता नहीं वो किसके लिए कह रहा है, ईरान के लिए कह रहा है, अमेरिका के लिए कह रहा है, सऊदीया के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। इसराइल का तो बहुत करीबी अलाई है। और हमले जो है वो उस पर ईरान की तरफ से हुए हैं, बेस जो है वो अमेरिकन है। तो बहरहाल ये उसका जो है वो एक ताज़ा बयान जो है वो आया था।
قطر نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے، قطر کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ 10 بیلسٹک جو میزائل اور 2 کروز میزائل مجھ پہ فائر کیے گئے ہیں ہمارے بیسس پہ ایران کی طرف سے، اور اس میں سے ہم نے 6 کے قریب جو ہے وہ کروز میزائل جو ہے انٹرسپٹ کیے ہیں، اور باقی جو جہاں پہ لگے ہیں وہ ایسا ایریا تھا کہ نہ آبادی تھی اور کچھ پانی میں لگے ہیں، یہ اس کا کہنا ہے، اور کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں، کوئی انجرڈ نہیں ہوا ہے۔ اور سعودیہ میں بھی جو ہے وہ ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں اور میزائل جو ہے وہ وہاں پہ لگے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ انہوں نے وہ بھی انٹرسپٹ کیے ہیں، سعودیہ نے جو ہے وہ کہا ہے۔ اس کے بعد یو ایس اے کی جو طرف سے جو ہے وہ ایک بیان آیا ہے کہ اسرائیل نے یو ایس اے سے ابھی جو لیٹسٹ ہیں 20,000 کے قریب جو ہے بام جو ہے وہ لیے ہیں وہاں پہ یو ایس اے سے اسرائیل نے، اور ان کی جو لاگت ہے وہ تقریباً $650 ملین کی بنتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گولہ بارود جو دیا ہے ابھی ان دنوں جو ہے وہ اس جنگ کے دوران لیٹسٹ جو ہے وہ 2 دن ہوئے ہیں، یا جو اپروول کروایا ہے جو کانگریس سے اس کی اپروول بھی ہوئی ہے، تقریباً $300 ملین کے جو ڈالر کا جو اس نے گولہ بارود ابھی دوبارہ سے جو ہے وہ یو ایس اے سے خریدا ہے اسرائیل نے، اور یہ جو کوئی فگر جو ہے انہوں نے بتائی ہیں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کرنی پھکی دے مال اڑے چکی، وہ والی بات ہے زیلنسکی کی، کہ زیلنسکی نے آفر کیا ہے سعودی عرب کو کہ تم کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ایران کے ڈرونز اٹیک سے تو وہ جو ہے وہ تمہاری وہ ہیلپ کرنا چاہتا ہے زیلنسکی سعودی عرب کی، وہ ایسے ہیلپ کرے گا کہ اس کے پاس بڑا تجربہ ہے ایران کے جو ڈرونز ہیں، جو ایرانی جو ڈیزائنڈ ڈرونز ہیں ان کو تباہ کرنے کا، اور ان کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو سعودیہ چاہے تو ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو گرانے میں اور ان کا توڑ نکالنے میں، یہ اس نے آفر کی ہے سعودیہ کو۔ دوسری طرف ہے جو ایک رپورٹ ہے جو لبنان کی گورنمنٹ نے دی ہے کہ اس وقت ہے کہ کم از کم 5 لاکھ کے قریب یا 5 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے وہ جو ریفیوجیز ہیں، جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست کرنا ہے، رہنے کی جگہ ان کے لیے، یہ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ اس نے جو اپیل کی ہے پوری دنیا سے، انٹرنیشنل جو کنٹریز سے، آرگنائزیشن سے، یو این او سے، کہ ہماری جو سپورٹ کی جائے، اس طرح کے لوگ ہیں، ہمیں شیلٹر چاہیے۔ تو یہ سچویشن جو ہے لبنان میں جو کریٹ ہو چکی ہے، خاص کر کے اس اٹیک میں، اس جنگ